السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج پھر ہم آپ کو مصر کی راجدھانی قاہرہ کے اندر ایک بہت ہی معروف و مشہور زیارت کرانے والے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے دوستو جہاں عالم اسلام کی دو ممتاز شخصیت مدفون ہے، ایک حضرت علی زین العابدین رحمہ اللہ جن کو علی اصغر بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے ان کے بیٹے حضرت زید رحمہ اللہ۔ یہاں انہی کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے اور یہیں پر اندر ان کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ هذا مسجد و مقام السید علی زین العابدین ابن مولانا الامام حسین رضی اللہ عنہما۔ یہ دیکھیے دوستو، یہ مزار ہے۔ دوستو حضرت زین العابدین رحمہ اللہ یہ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور واقع کربلا میں آپ کی اولادوں میں واحد زندہ بچ جانے والوں میں سے ہیں۔ واقع کربلا کے وقت ان کی عمر تقریباً 22-23 سال کے قریب بتلائی جاتی ہے۔ جب واقع کربلا ہوا تھا تو یہ اس وقت بیمار تھے، اس کی طبیعت خراب تھی، اس لیے معرکے میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اس کی وجہ سے اس کی شہادت بھی نہیں ہوئی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صرف یہی اولاد نرینہ جو ہے حیات تھی، واقع کربلا میں بچ گئی تھی۔ اس کے علاوہ سارے شہید کر دیے گئے تھے جو اہل بیت میں سے تھے۔ واقع کربلا کے بعد حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کو کوفہ سے دمشق بھیج دیا گیا، پھر دمشق سے وہ مدینہ منورہ چلے گئے۔ چنانچہ 25 محرم الحرام سن 95 ہجری کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کی تدفین کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں کہ ان کی تدفین کہاں ہوئی، ان کا حقیقی روضہ مبارک کہاں ہے۔ ابھی آپ جس روضہ مبارک کی زیارت کر رہے ہیں، کیا آپ کا یہی حقیقی روضہ مبارک ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو کہ اکثر تاریخی روایات کے مطابق ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئے اور یہ وہی مدفون ہے۔ بعض تاریخی روایات اور امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کی تدفین یہیں قاہرہ ایجپٹ کے اندر ہوئی اور یہی آپ کا حقیقی مقبرہ ہے، کیونکہ ان کی جو پھوپھی ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، ان کا مقبرہ بھی یہیں قاہرہ میں یہاں سے کچھ ہی دور میں ہے، اور وہاں ایک مسجد بھی قائم ہے، مسجد سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے نام سے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس جگہ کو بھی کور کریں گے اور وہاں جا کر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی قبر اور اس مسجد کی بھی زیارت کرائیں گے اور اس کے حوالے سے باتیں کریں گے۔ بہرحال دوستو یہاں دو شخصیت مدفون ہے، ایک حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ان کے بیٹے حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس کے بارے میں بھی کچھ اختلافات ہے، بعض اتہاس کاروں کا ماننا ہے کہ یہاں حضرت زید رحمہ اللہ کا صرف سر مدفون ہے، اور بعض نے کہا کہ سر نہیں بلکہ دھڑ مدفون ہے۔ دراصل دوستو یہ شہید کیے گئے تھے، ان کی شہادت کی داستان بھی شہادت امام حسین واقع کربلا کی درد بھری داستان سے کم نہیں ہے۔ واقع کربلا کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے دوستو، واقع کربلا اسلامی تاریخ اور مسلم سیاست میں سب سے بدترین اور بدنما داغ ہے۔ کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے خطوط کے ذریعے امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک منصوبہ بند سازش کے تحت کوفہ بلایا گیا، پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے پہلے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ چنانچہ مسلم بن عقیل جیسے ہی ایلچی بن کر کوفہ پہنچے، ان کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا دوستو، کیونکہ اس زمانے میں سفیر کا قتل بہت ہی غلط کام اور بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت امام حسین بھی کوفہ روانہ ہو گئے۔ جب آپ کربلا کے میدان میں پہنچے تو آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کا پتہ چلا، آپ کو یہ معلوم ہوا کہ حالات سازگار نہیں ہے، آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ حالات ایسے نہیں ہے جیسا میں سوچا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے درباریوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت حسین کو میرے پاس پکڑ کر لاؤ اور بغیر کسی شرط کے میرے ہاتھوں پر بیعت کراؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنا موقف یہ رکھا کہ اگر میں بیعت ہوں گا تو ڈائریکٹ یزید کے ہاتھوں ہوں گا جو خلیفہ ہے، ابن زیاد کے ہاتھوں بیعت نہیں ہوں گا۔ ابن زیاد نے اس میں اپنی توہین محسوس کی اور زبردستی کرنے لگے۔ اسی کے ضمن میں جنگ تک کی نوبت آ گئی۔ عبید اللہ بن زیاد کے لشکر نے میدان کربلا میں امام حسین کا چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا اور امام حسین سمیت سوائے امام زین العابدین کے سارے اہل بیت میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ پھر آپ کا سر مبارک کاٹ کر یزید کے پاس دمشق بھیجا گیا تو یزید بدبخت نے بھی آپ کی بے حرمتی کی۔ یزید نے خضران کی ایک لمبی لکڑی منگوا کر آپ کے ہونٹوں اور دانتوں پر پھیرنی شروع کی تو صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ جو وہاں موجود تھے، اس نے یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ خدا را آپ ایسا نہ کریں، خدا کی قسم میں نے ان ہونٹوں کو کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے ٹچ ہوتے ہوئے، آپ کے ہونٹوں سے لمس ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوستو ایک مسلمان حاکم کے ہی ہاتھوں نواسۂ رسول کا قتل اور اس کی لاش کے ساتھ اس قدر بے حرمتی، یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں مسلم پولیٹکس کا ایسا گھٹیا اور بدنما داغ ہے جس سے اسلامی تاریخ آج تک شرمندہ ہے۔ آج ہم نے واقعہ کربلا کو شارٹ میں بیان کیا دوستو، کبھی انشاءاللہ ہم واقعہ کربلا کو بالتفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔
तो मैं ये बता रहा था दोस्तों कि हज़रत ज़ैद रहीमहुल्लाह जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पोते और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं, इनकी शहादत की दास्तान भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत से मैच करती है। ये भी एक दर्दनाक और अजीब व गरीब कहानी है दोस्तों। जब आप सुनेंगे तो आपके आंख से आंसू और जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको खुलासतन यहाँ बताता चलूँ कि हज़रत ज़ैद रहीमहुल्लाह ये मदीना मुनव्वरा के बाशिंदे थे, वहीं रहते थे। हिशाम बिन अब्दुल मलिक के दौर में, जब उमवी खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक बरसले इख्तिदार थे, शाम का शहर दमिश्क इनका दारुल हुकूमत था। तो उस वक्त इराक का एक गवर्नर था खालिद बिन अब्दुल्ला आसरी, जिसको हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने ही इराक की विलायत के लिए तायुन किया था। और उस गवर्नर खालिद बिन अब्दुल्ला आसरी की हज़रत ज़ैद रहीमहुल्लाह से बनती नहीं थी। यह आपसे हसद, जलन, कीना, कपट रखते थे। कुल मिला के यूँ कह लें कि एक व्यक्तिगत दुश्मनी थी। फिर यह गवर्नर खालिद बिन अब्दुल्ला आसरी माजूल कर दिए गए और इसकी जगह यूसुफ बिन उमैर अस-सक़फ़ी को इराक का वाली बनाया गया, जो कबीले सक़ीफ़ में से थे। फिर खालिद ने हज़रत ज़ैद से दुश्मनी के बसबब मौजूदा वाली इराक यूसुफ बिन उमर अस-सक़फ़ी के पास ये बात पेश की कि ज़ैद ने मुझसे, जब मैं इराक का वाली था, तब सरकारी ख़जाने से बहुत से पैसे बतौर कर्ज के लिए हैं। ये पैसा उनके पास अमानत है, लिहाजा अब आप वाली हैं, आपकी जिम्मेदारी है आप उनसे ये पैसे वसूलिए। हालांकि पैसे वैसे कुछ लिए नहीं थे, ये आपको फंसाने की एक साजिश थी। तो वाली मिस्र यूसुफ बिन उमर ने मदीना के गवर्नर को ख़त लिखा कि ज़ैद को मेरे हवाले करो, उनके पास हमारे ख़जाने के कुछ पैसे हैं जो मुझे उनसे वसूलने हैं। मदीना के गवर्नर ने हज़रत ज़ैद से कहा कि हमें पता है आप बेगुनाह हैं, क्योंकि मदीना के गवर्नर जो है हज़रत ज़ैद की शख्सियत से वाकिफ़ थे, आपको जानते थे, लेकिन हम मजबूर हैं, इसलिए आपको कूफा जाना होगा। चुनांचे आप कूफा रवाना हो गए। फिर वाली इराक़ ने आपको दमिश्क भेज दिया, आप दमिश्क पहुँचे। हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने इस मामले में तफ्तीश की तो आप बेगुनाह साबित हुए। मुल्क शाम से फिर कूफा दोबारा भेज दिए गए और यहाँ यूसुफ बिन उमर ने दोबारा फिर बजाते खुद तफ्तीश की, यहाँ भी आपकी बेगुनाही साबित हुई और आपसे ये कह दिया गया कि अब आप बरी हैं, आप चाहें तो वापस मदीना जाएं, अगर चाहें तो यहाँ कूफा में भी रह सकते हैं। आपने मदीना जाने के बजाय कूफा में ही रहना पसंद किया। जब आपने कूफा को अपना मुस्तकर बना लिया तो आप चूँकि एक बुलंद पाए के आलिम दीन थे और अपने ज़माने के सबसे बड़े फ़कीह माने जाते थे। आपका दौर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का दौर था। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने खुद कहा है कि अपने दौर के सबसे बड़े फ़कीह हज़रत ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह हैं, इसलिए आपके पास काफ़ी लोग आते जाते, आपसे मसला पूछते, आपसे तबर्रुक हासिल करते। धीरे धीरे इराक़ समेत खुरासान में भी आपकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ती चली गई। तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक को आपसे ख़तरा महसूस हुआ। इन्हें लगा कि कहीं यह हमारी सल्तनत का तख्ता पलट न कर दे, इसलिए हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने वाली इराक़ यूसुफ को ख़त लिखा कि ज़ैद को इराक़ से भगा दो। हज़रत ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह जब कूफा से मदीना के लिए रवाना हुए तो अहले कूफा में से कुछ लोगों ने आपको रोक दिया। आपसे कहा प्लीज़ आप यहाँ से न जाएं, आप ही हमारे रहबर हैं, आप नहीं होंगे तो कौन होगा, आप हमारे साथ चलें, हम आपका साथ देंगे, आपके साथ मिलकर हमें इस जालिम हुकूमत से मुकाबला करना है। हज़रत ज़ैद मान गए और खुफिया तौर पर कूफा ही में रहने लगे। तो दोस्तों कहा जाता है कि अहले इराक़ में से 40,000 और अहले खुरासान में से 1,00,000 लोगों ने हज़रत ज़ैद बिन अली की बैअत की और यूसुफ बिन उमर के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देने की कस्में खाई। जब वाली इराक़ यूसुफ बिन उमर को इस बात की खबर हुई तो उसने अहले खुरासान को ख़त लिखा और कूफा आने से रोक दिया। अब अहले कूफा में से बाकी 40,000 जिन्होंने आपके हाथों बैअत की थी वो भी अपने वादे से मुकर गए। तब आपने ये निदा भी दी थी क़द फ़अलूहा, अरे ओ बदबख्तो, तुमने तो आज मेरे साथ वैसा ही किया जैसा कि तुम्हारे बाप दादा ने मेरे दादा हुसैन के साथ किया था। चुनांचे यकुम सफ़रुल मुज़फ़्फ़र बरोज़ बुध जंग शुरू हुई। 2 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में इसमें और शिद्दत आ गई और दौरान जंग एक तीर आकर हज़रत ज़ैद के दिमाग पर लगी। तीर निकालने से आपने एक चीख मारी और वहीं आपकी रूह परवाज हो गई। यूं 2 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र सन 122 हिजरी बरोज़ जुमेरात बाद मगरिब हज़रत ज़ैद रहीमहुल्लाह शहीद कर दिए गए। अब इसकी शहादत के बाद जुल्म की एक अलग दास्तान शुरू होती है दोस्तों। आपके रफ़क़ा और अहले बैत से मोहब्बत रखने वालों के दरमियान आपकी लाश को लेकर मशवरा होता है कि हम इनकी लाश छुपाएं कहाँ, इन्हें दफनाएं कहाँ, क्योंकि उस ज़माने के जो हाकिम होते थे वो अपने दुश्मनों के लाश के साथ काफ़ी बेहुरमती करते थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सर को काटकर किस कदर बेहुरमती की गई, मैदान करबला में लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए। खुद हिशाम बिन अब्दुल मलिक की वफ़ात के बाद जब अब्बासी खलीफा बरसरे इक़्तिदार हुआ तो इनकी लाश को दस्तरखान बनाकर उसमें खाना खाया गया। ये इस कदर जुल्म की दास्तान है दोस्तों जिसको मैं यहाँ भी तफसील बयान भी नहीं करना चाहता। बहरहाल हज़रत ज़ैद की लाश को लेकर लोगों ने तरह तरह की राय दी। किसी ने कहा कि ज़ीरा पहना कर ताबूत में पैक करके दरिया में बहा देते हैं, अल्लाह हिफाजत करेंगे। किसी ने कहा कि सर को काट कर कहीं छुपा कर दफना देते हैं और धड़ को कब्रिस्तान में आम तदफीन कर देते हैं। अगर इन्हें ताज़ा कब्र देखकर शक हुआ और उसने खुदाई करवाई तो वो पहचान नहीं सकेंगे।
क्योंकि सर ही नहीं रहेगा। हतमी फैसला ये हुआ दोस्तों कि दरिया के किनारे जो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं उसमें दफना देते हैं, कब्र नहीं बनाएंगे, गड्ढे में डालकर मिट्टी बराबर कर देंगे। और इन्होंने ऐसा ही किया। मगर इत्तेफाक से एक धोबी वहीं थोड़ी दूर दरिया के किनारे घाट में कपड़े धुल रहा था, उसने देख ली और पैसे की लालच में उसने ये खबर यूसुफ बिन उमर को पहुंचा दी। यूसुफ ने आपकी लाश को निकालकर सबसे पहले सर तन से अलग किया। इमाम हुसैन के साथ भी यही हुआ था। सर को नेज़ू पर नचाया गया। फिर कूफा से शाम दमिश्क हिशाम बिन अब्दुल मलिक के पास सर को भेजा गया। हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने आपके सर को दमिश्क के मरकजी गेट पर लटका दिया ताकि लोगों को पता चले और हमारे खिलाफ आने की कोई जुर्रत व जसारत ना करे। ये उस वक्त बादशाहों का एक दस्तूर था दोस्तों, ताकि दूसरे लोग इससे इबरत लें और इससे सबक हासिल करें और हुकूमत के खिलाफ कोई आने की जसारत ना करे। फिर हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने कुछ महीनों के बाद आपके सर को मदीना मुनव्वरा भेज दिया ताकि मदीना के लोग भी इससे सबक लें और हमारे खिलाफ आने की कोशिश ना करें। फिर मदीना से मिस्र भेजा गया और यहाँ भी बेहुरमती की गई, सर को लटकाया गया। फिर इनकी तदफीन यहाँ काहिरा इजिप्ट में हुई दोस्तों, जिसकी आप अभी जियारत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वाक़या भी वाक़या करबला से कम नहीं है। मुस्लिम इतिहास में इस वाक़े से भी इस्लामी तारीख़ काफ़ी शर्मिंदा है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वाक़या करबला और शहादत हज़रत ज़ैद के मुतालिक कुछ खुसूसी पॉइंट को अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को न सिर्फ लाइक बल्कि इसको शेयर भी करें। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।